Should we start? Yes, yes. Uh, do we have Professor Anurodh Sisodia joining us? Yes, he's there. And he's Yeah. properly connected. Yes, No yes. issue. Yes, yes. All right, madam. Yeah, A let's very start. warm good evening, one and all present. I'm Dr. Kailash Singole from Department of English, Yashwant Mahavidyalaya, Nanded. I welcome you all in this two-day national webinar on Indian knowledge system, bridging ancient wisdom with modern knowledge. Dear all, it's day two of the webinar, and we have a very renowned guest, Professor Anurodh Singh Sisodia, IT Director of UGC MMTC LNITE Gwalior MP. We also have Dr. LV Padmarani Rao Madam, Head PG Department of English and Research Center, Yashwant Mahavidyalaya, Nanded, as the organizing secretary of the webinar. A very warm verbal welcome of all dignitaries and participants. Let's begin. India has been a source of inspiration for the countries over the globe, academically, philosophically, culturally, and more importantly, spiritually. In view of promoting and propagating Indian knowledge, we must proudly cherish our wealthy heritage. In view of this, NEP 2020, designed the syllabus of Indian knowledge system and made it mandatory for the UG students over the university. To know more about today's webinar, today's session, day two uh, session, I would like to invite Dr. L.V. Padmarani Rao, Madam, Head PG Department of English, Yashwant Mahavidyalaya, for introductory speech. Dr. Padmarani Rao, Madam. Namaskaram. Good evening, all. Honorable Principal of Yashwant Mahavidyalaya Nanded and the President of today's event, Dr. Ganesh Chandra Shinde, respected Vice Principals of the College, Dr. Kavita Sonkamble and Dr. Harish Chandra Patange, esteemed heads of the various departments, my colleagues, distinguished faculty, researchers, students, and all the enthusiasts of Indian knowledge systems who have joined us from across the country. A very warm welcome to each one of you. It gives me immense pride to begin by introducing our institution. Yashwant Mahavidyalaya Nanded, established in 1963 by Sri Sharda Bhavan Education Society, has emerged as a premier center of higher learning with a glorious tradition of academic excellence. As a multi-faculty college, it offers undergraduate, postgraduate, and doctoral programs across arts, commerce, and science, nurturing nearly 5,000 students on a dynamic and vibrant campus. The institution is guided by the visionary leadership of Shri Ashok Raoji Chauhan, President of Shri Sharda Bhavan Education Society, and all its esteemed members. Our academic endeavors are consistently encouraged and supported by the dynamic stewardship of our principal, Dr. G.N. Shinde, whose commitment to holistic development has enabled the college to soar to a new heights in academics, research, and co-curricular activities. Our achievements bear testimony to this pursuit of excellence. The college has been accredited with the prestigious A grade by NAC Bangalore for 3 consecutive cycles. And in October 2023, during the 4th cycle of NAC accreditation, Yashwant Mahavidyalaya Nanded proudly earned the coveted A+ grade, reaffirming its stature as a center of distinction and quality. Friends, Indian civilization has always cherished knowledge as the highest value, reflected in its unparalleled intellectual and cultural heritage. Our nation holds the world's largest repository of manuscripts, an ocean of texts, and a continuous tradition of thinkers and schools of thought across a wide range of disciplines, from philosophy, mathematics, astronomy, grammar, and architecture
to medicine, metallurgy, shipbuilding, polity, trade, and beyond. This timeless pursuit of wisdom is not just our past glory, but also our guiding light for the future. It is in this spirit that the National Education Policy, NEP 2020, has placed a renewed emphasis on the integration of Indian knowledge systems, IKS, into school and higher education curricula, ensuring that our future generations remain deeply rooted in this enduring intellectual tradition while engaging with global knowledge systems. In the alignment of this vision, the Department of English, Yashwant Mahavidyalaya, Nanded, has taken proactive steps in initiating webinar series on Indian knowledge systems. Through this initiative, we have had the privilege of hosting eminent scholars and thought leaders who have enlightened us on a wide spectrum of themes. Bhagavad Gita and Modern Age by Professor Gauri Mahulikar from Kerala, Bharatmuni's Natya Shastra by Professor Amit Kumar from IFLU, Hyderabad, Chanakya's Arthashastra by Mrs. Ashwini Mantalkar from Nanded, Science and Technology on IKS by Professor B.N. Jagtap from IIT Mumbai, Mahakavi Kalidasa, the representative poet of India, by Dr. Manish Ranjan Walwekar from Amrita Vishwa Vidyapeetham, Bangalore, Vedic Mathematics by Mrs. Madhura Bharade, Pune. Further, in October 2024, we organized a 4-day workshop on various aspects of IKS, conducted by Dr. Uday Kumthekar, a distinguished IKS scholar from Nanded. Continuing this enriching tradition, we are delighted to host this 2-day national webinar on Indian knowledge systems, Bridging Ancient Wisdom with Modern Knowledge, on 19th and 20th September 2025. We are honored to have Dr. Kshitij Patkule from Bhishma Indic School of Studies, Pune, yesterday, who gave an elaborate talk on IKS and its objectives, along with its contemporary relevance of teaching in the modern day to the Gen Z youth. And today, we shall hear from Professor Anurodh Singh Sisodia, In-charge Director of UGC MMTTC, Gwalior, Madhya Pradesh, on holistic health as per Indian knowledge system. Their deliberations promise to bring us new insights into the timeless relevance and transformative potential of IKS. It is heartening, sir, to note that we have around 275 participants, students, teachers, researchers, and enthusiasts of IKS, representing 9 states across the country. Such a response reflects the growing recognition of a relevance of Indian knowledge systems in the contemporary discourses. On behalf of the Department of English and Yashwant Mahavidyalaya, Nanded, I extend a very warm welcome to all the participants and especially to our guest speaker, Professor Anurodh Singh Sisodia. Together, let us engage, reflect, and celebrate the confluence of ancient wisdom and modern knowledge through this intellectual feast. Thank you very much for permitting me to give this introductory talk and giving me the privilege of welcoming all. Thank you and welcome. Thank you. Thank you so much, madam. As has been mentioned by Dr. Rao, madam, that a parallel event is going on today. So I would be performing many roles. My next role would be to introduce today's guest speaker. And here I would be introducing Dr. Anurodh Singh Sisodia. He is a distinguished academician and administrator with over 25 years experience in teaching, research, administration, course design. Dr. Sisodia is currently serving as the in-charge director of UGC Malviya Mission Teacher Training Center, MMTTC, at Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior, MP. He holds PhD in physical education. He is a NET qualified. So far, 9 students have been awarded with PhD degree under his supervision, and he has also completed post-graduation diploma in yoga and meditation. Dr. Sisodia is a sought-after speaker who engages or who like to engage sessions on stress management,
conventional teaching methods, integrated development of body, mind, and soul. Professor Sisodia's exemplary contribution have earned him prestigious accolades, including Lifetime Achievement Award by Physical Education Foundation of India, New Delhi, and Madhya Pradesh Gaurav Ratna Samman by Rashtriya Nari Sashakti-Karan Sangha, and most importantly, Dhanchand Award for its contribution to physical education. Well, such a great personality is with us, and like yesterday, today also it's going to be academic quiz. And without being huddled between you and the guest speaker, I would like to invite Dr. Anurodh Singh Sisodia for his deliberation on the subject and elaborate discussion on Indian knowledge systems. Thank you very much, sir, for elaborated introduction. Sometimes I feel uncomfortable when someone gives my introduction. Okay, at the outset, I would like to thank the organizer of this wonderful event, Dr. L.V. Padmarani Raoji, organizing secretary of this event, and Principal Yashwant Madhav Vidyalaya, Nanded, Dr. G.N. Shinde ji, and all the members and faculty who are involved in organizing such this event. I really sincerely thank the organizer for giving me the opportunity to share my views on a very important topic, that is holistic health as per Indian knowledge system. So, friends, yesterday there was a lecture on holistic health, or a lecture on Indian knowledge system. So I'll not speak more about Indian knowledge system. Simply, we can say that it's a term used for intellectual and philosophical traditions of India, which have long history dating back to ancient time. और जिसका बहुत मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूंगा, जैसे मुझे बताया गया है कि नांदेड़ में का मैंने थोड़ा देखा भी किस लैंग्वेज को यूज करते हैं, लेकिन ये सेमिनार वेबिनार इंग्लिश डिपार्टमेंट कंडक्ट करा रहा है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं सुन रहा था, तो मैं बायलिंगुअल चलूंगा. Let me share my PPT first. Yeah. Wait a minute more. Share. Is it visible or not? No, sir. No? No, it's okay. blank. Wait a minute. अब शेयर हो रहा है, प्लीज कोई बताएगा? जी No, नहीं sir. हो रहा है. No, not it. No? What's the problem? You could as well send the PPT to us, sir, so that the technical assistant will assist us. Let me try first, ma'am. Okay, Then sir. only. Sure, sure. Actually, it's a routine feature. Yeah, now it is visible. Now visible? Yes, sir. Yes, sir. Is it changing? Yes, sir. It is changed. That's great. That's great. Okay.
Okay. So today's topic is holistic health as per Indian tradition or as per Indian knowledge system. And Indian knowledge system कहाँ से मिला? वेदास से मिला। वेद भी आपको श्रुति से मिला। ऋषि और ऋषिकाओं ने इसको लिखा है, कोई एक व्यक्ति की रचना नहीं थी। बहुत सारे और जो भी हमारे जो भी मिलते गए हमें, उपनिषद से मिले, रामायण से मिले, भगवत गीता से मिले, फिर हमारे बहुत सारे संत ट्रेडिशन भारत में बहुत रही। कबीरदास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, आपके महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी, संत रामदेव जी, संत एकनाथ जी, आदि शंकराचार्य जी, बहुत सारे ट्रेडिशंस में उन्होंने सामान्य भाषा में, लोकोक्तियों में बताया कि कैसे हम हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ अलोन इज नथिंग, मतलब आवर बॉडी इज नॉट ए सिंगल यूनिट। इसके अन्नमय कोश अलग है, प्राणमय कोश अलग है, मनोमय कोश अलग है, विज्ञानमय कोश अलग है, देन आनंदमय कोश बिल्कुल बाद में, जब प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल हो जाता है तब इस आनंदमय कोश की हम परिकल्पना कर सकते हैं। देन व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स, because friends, we are more than 50% population which is below the age of 25 years. Our population is our strength. At the same time, it's a double-edged sword. अगर हमारी पॉपुलेशन मॉरल वैल्यूज और इनसे दूर हो गई, क्योंकि सेम पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा सुसाइड केस अभी इस समय हो रहे हैं। मेजर कंसर्न है सुसाइड का इंडिया में यूथ पॉपुलेशन में। अगर यूथ पॉपुलेशन को हम सहेज नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, तो फिर, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट, क्योंकि टीचर इज नॉट ओनली एकेडमिक गाइड, along with academics he is also personality molder। एक पूरा बच्चे का पूरे चरित्र का निर्माण करता है, और चरित्र या मॉरल वैल्यूज इसका कोई पैकेज नहीं है जो आप कहीं से ले लें। ये इसके कंटेंट्स हैं, बहुत सारे कंटेंट्स जो हम डेवलप कर सकते हैं। आज हम उसकी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका पूरा कंसेप्ट, टीचर्स का भी जो मेन, जो हायर एजुकेशन और एनईपी का मेन कंसेप्ट है कि अब वो टीचर्स इसमें रहेंगे जो हाईली एनर्जेटिक रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और मल्टी डायमेंशनल रहेंगे। But they must be able to correlate the subject content with the real life experience of the students। क्योंकि आज के जमाने में चैट जीपीटी है, मेटा एआई है, गूगल पहले से था। What else we can provide? We are not information provider। हमें टोटल पर्सनैलिटी को देखना होगा कि एक स्वस्थ समाज में स्वस्थ नागरिक कैसे रहता है, जो सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं या वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। क्योंकि ये कंसेप्ट बोलना बहुत इजी है, लेकिन बोलने से पहले उसका लिए वो घटक डेवलप करना सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, in this whole lecture we'll cover what is holistic health, mind body spirit connection, 5 pillars of IKS for holistic health, the Indian knowledge system foundation, and the philosophical foundation of holistic health, 6 schools of Indian philosophy, classification of the school of Indian philosophy, key practices and components, Ayurveda, and the pillars of Ayurvedic health, 3 doshas, key practices and component. Then we'll conclude after the whole discussion. Then first, what is holistic health? Holistic health क्या है? It's a state of well-being where mind, body, and spirit are in a balanced and interconnected. Alone, body is nothing. Body is a vehicle. Driver is mind. If you are having the healthy mind, कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन साधता कौन है? वो लगाम किसके हाथ में? मन। उसके लिए बुद्धि चाहिए। तो इट्स स्टेट ऑफ वेलबींग और इंटरकनेक्टेड स्टेट वेयर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट आर इन बैलेंस फॉर्म, सब बैलेंस वे में काम करें। इट्स नॉट ओनली द, जैसे WHO कहता है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर। ठीक है, वेलबींग है, लेकिन वो यूरोपियन जो फिलॉसफी है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वो शरीर को यूनिट की तरह काम करती है, और हम लोग शरीर को अलग 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 सेगमेंट की बात करते हैं। अन्न में कोश, अन्न से मसल्स, आपके जो भी डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, वो अन्नमय कोश है। प्राणमय कोश 72,000 नाड़ियां हैं, उसके अंदर प्राणवायु प्रवाहित होती है, जिसको एड़ा पिंगला सुषुम्ना रिप्रेजेंट करती हैं। और मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये प्लेनेट्स अपनी जगह पर हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये शक्ति आ कहाँ से रही? कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मोस से आ रही है। लेकिन इस शक्ति को हम गेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे?
क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट्स है, अगर इफ यू आर रेस्टलेस, चाहे मेंटली हो फिजिकली हो, अगर हम रेस्टलेस हैं तो डेफिनेटली उस शक्ति का संचय तो हम नहीं कर पाएंगे, उस उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। डीप स्लीप में या तो कॉस्मिक एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं, इन स्टेट ऑफ मेडिटेशन हम इसको गेन कर पाते हैं। Always remember, our every action is a cumulative effort of mind and body. More the synchronization or balance between them, refined will be the movement. Poor the balance or synchronization, poor will be the movement. Apart from this, हमारे नाट्य शास्त्र में एक बहुत अच्छा श्लोक बोला जाता है, यतो हस्तः ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः. Where our action goes, where we perform the action, our eyes goes. Where our eyes goes, they are followed by our mana. Where our mana goes, followed by our bhava. वैसे ही भाव हो जाएंगे. When there is a synchronization of drashti, hastha, manaha, and buddhi, then we get the nectar. Nectar means extract, output. तो ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे आएगा? ये हमारे मन, बुद्धि और स्पिरिट, सोल एस्पेक्ट जब का इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, तब हम ये इंटीग्रेशन की बात करते हैं. फ्रेंड्स, व्हाट एवर वी थिंक, व्हाट एवर वी डू, व्हाट एवर वी स्पीक, व्हाट एवर वी मेमोराइज, इट ऑल चेंजिंग आवर इंटरनल फिजियोलॉजी. हमारे इंटरनल फिजियोलॉजी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है. अगर हम बुरा बोल रहे हैं और सोचें कि बुरा बोला ही तो है, बुरा कर रहे हैं, बुरा किसी ने देखा नहीं, बट आपके इंटरनल फिजियोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है. आपने सुना होगा न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, these are all neurotransmitter, they motivate and initiate action. बट जब निगेटिविटी में हम रहेंगे तो क्या होगा? कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा, या एक एंजाइम सीक्रेट होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, वो हो जाएगा. तो चाहते ना चाहते भी मैं धीरे धीरे डिप्रेशन और स्ट्रेस में चला जाऊंगा. बिकॉज ऑन ए टिपिकल डे वी रिसीव ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस फ्रॉम आवर सराउंडिंग. हमारे जो इंद्रियां हैं ना, कुछ ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, और एक मन है जिसको हम उभय इंद्रिय बोलते हैं. इट्स ए कनेक्शन बिटवीन ज्ञान इंद्रिय एंड कर्म इंद्रिय. वी रिसीव ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस आर सेंस ऑर्गन्स. उन मैसेजेस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली लिविंग इन ए चेंजिंग सोसाइटी. जो अभी है वो कल नहीं होगा, कल है वो परसों नहीं होगा. तो मैसेजेस, जो घटनाएं हो रही है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, स्ट्रेसर्स पर हमारा कंट्रोल नहीं है. The messages which are happy and thrilling are received by our happy messengers and carried over to the happy message box, and messages which are sad and somber are carried by sad messenger, taken over to the sad message box. Till such time, जब तक इस happy और sad messengers का balance synchronized रहता है, everything goes smoothly. But when someone is exposed to negative environment for longer duration, लंबे समय तक नेगेटिविटी में व्यक्ति रहता है, तो वो क्या कर रहा है? He is nourishing his और हर सैड मैसेंजर्स. वो पोषित किसको कर रहा है? वो नेगेटिविटी को पोषित कर रहा है. जब नेगेटिविटी पोषित होगी तो ऑटोमेटिकली उसमें केमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. फ्रेंड्स, अभी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज कार्डिक प्रॉब्लम है. अबाउट 30% डेथ इंडिया में जो हो रही है कार्डिक प्रॉब्लम के कारण हो रही है. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, देन डायबिटीज है, एन नंबर जो डिजीज है, इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोरिलेशन सीधे आपके थिंकिंग प्रोसेस है. मनोदैहिक रोग है. इनकी उत्पत्ति मन से हो रही है, लेकिन इसके लक्षण शरीर पर दिखाई देते हैं. सो जो यूरोप वेस्टर्न फिलॉसफी इज एंटायरली डिफरेंट. अभी हम सुश्रुत की बात करेंगे, कैसे वो सम दोष सम अग्निश की बात करते हैं. लेकिन इसको इट्स ए स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग. जब व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जब बिल्कुल बैलेंस्ड वे में रहे, सुदृढ़ रहे. बिकॉज वी हैव नो कंट्रोल ओवर स्ट्रेस. We can only build our mental and physical reserves. उसको मानसिक और शारीरिक आत्मविश्वास जिसको हम रिजर्व से उनको बिल्ड कर सकते हैं, वो शक्तियों को निर्मित कर सकते हैं. जब वो शक्तियां निर्मित हो जाएंगी तो आपको समस्या छोटी लगने लगेगी. अगर आप में शक्ति नहीं और समस्या आ गई तो आपको सब कुछ बड़ा लगने लगेगा. आपको रस्सी में सांप दिखने लगेगा. होता है ना, साइकोसिस और न्यूरोसिस प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हेलुसिनेशन, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसको हमने पैदा की है. तो मेन कंसेप्ट है कि आप अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना करें. इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, क्योंकि यथो पिंडे ततो ब्रह्मांडे.
वट एवर एग्जिस्ट इन माइक्रोकॉस्म एग्जिस्ट इन मैक्रोकॉस्म। जो भी मैक्रोकॉस्म है वो माइक्रोकॉस्म में, सॉरी, जो मुझ में है वो ब्रह्मांड में है। जो हमारा शरीर 5 महाभूत से बना है ना, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये हम उंगलियों पे जैसे उनको करते भी हैं, कई बार मुद्रा में काम लेते हैं योग में। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जो 5 महाभूत ब्रह्मांड में है वो हम में एग्जिस्ट करते हैं। आप देखिए कहीं भी डिस्टर्बेंस होगा ये, तो क्या है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस हो तो आप में चेंजेस आने लगेंगे ग्रहण के समय, या और भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, नेचुरल जो डिजास्टर हो रहे हैं, कैलमिटी जो कुछ भी होंगे, जो ब्रह्मांड में हो रहा होगा उसका इम्पैक्ट। आप पूर्णिमा को देखिए, आपका जो मूड कैसा रहता है, अमावस को देखिए मूड कैसा रहता है, ये सारा इंटरकनेक्टेड है। जो पिंड में है वो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, ये मानना पड़ेगा आपको। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे यहाँ शांति मंत्र भी जो जिस तरह के बोले जाते हैं, उसका बिल्कुल उसका साइंटिफिक वो है कि शांति मंत्र क्या है। जब शांति मंत्र हम लोग बोलते हैं कि वातावरण में कैसे शांति रहे, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पत शांति, शांति विश्व देवा शांति, शांति ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति रेव शांति, सा माँ शांति रोधा, और रेदी, सॉरी, ओम शांति शांति शांति। मतलब इस मंत्र, आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, औषधियों में शांति हो, वो शांति मुझ तक भी पहुंचे। तो ऐसा शांति, क्योंकि ब्रह्मांड में अगर अशांति रहेगी कहीं भी, तो बिलीव मी, आप शांत नहीं रह सकते, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल। अपार्ट फ्रॉम ये आपका जो पंचभूत सिद्धांत, उसके अलावा भी मानसिक रूप से मनुष्य और पशु में एक अंतर होता है। पशु अपने लिए जीता है, मनुष्य सबके लिए जीता है। अगर किसी देश में अशांति है, दुनिया में कहीं कोने में समस्या है, तो आप भी अशांत हो जाते हैं। सो होलिस्टिक हेल्थ का जो कंसेप्ट है, इट्स अबाउट प्रिवेंशन एंड मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, नॉट जस्ट ट्रीटिंग द डिजीज। और एलोपैथी का क्या है, उनका एक्सपेरिमेंटेशन, एक दवाई दी तो उसको, उसके अलावा दूसरों पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो कई बार शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिसर्च उनकी होती रहती है। तो किसी भी आप मेडिसिन को लेंगे एक्सटर्नल, तो इसका इम्पैक्ट कहीं और होने लगेगा। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं, समभाव में रहते हैं, तो देखिए समस्या कई बार बहुत छोटी लगने लगती है और बीमारी आती ही नहीं। देखिए हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हम पे पैथोजेंस अटैक करते हैं, वायरस अटैक करते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक है, और इम्यूनिटी सिर्फ आपका केवल फिजिकल एस्पेक्ट से ही नहीं आती, आपकी सोच से भी आती है, आपके मन से भी आती है। जैसे मन में भाव आने लगेंगे, वैसे आपका शरीर एक्ट करने लगता है। देन माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन एंड इम्बेलेंस इन वन अफेक्ट्स अदर। अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए, तो आप देखिए, मैं बहुत सामान्य भाषा में बात करूंगा, क्योंकि मुझे सामान्य सुनना, सामान्य बोलना ही पसंद है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट पे हम बात नहीं करेंगे आज। क्योंकि मेरा ये मानना है, टीचर का भी कंसेप्ट जो क्लास में पढ़ाता है वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और बच्चे अपने आप पढ़ते हैं। वंस इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, दे विल लर्न ऑटोमेटिकली। फोबिया इज द बिगेस्ट एनिमी, इंटरेस्ट इज द बेस्ट फ्रेंड। तो आज मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप करा दूं, तो आप अपने आप इसको पढ़ें, और आपके बच्चों के लिए, डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए काम में आएगा। ये अगर पैर में कांटा है तो आप गाना नहीं गा सकते। किसी भी एक कोश में प्रॉब्लम है, मन में समस्या है, तो शरीर उस तरह से काम नहीं करे, उसमें केमिकल चेंजेस आ जाएंगे। आपके विचारों में उथल पुथल है, स्केटर्डनेस है, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो बॉडी, शरीर इज अ फिजिकल फॉर्म, माइंड मनस मीन्स थॉट्स, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस, ये 3 पिलर्स है। स्पिरिट मीन्स आत्मा। बड़ा अच्छा श्लोक अमृत बिंदु से मुझे मिला, तो मैं कोट कर रहा हूं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, बंधाय विश्वास विषासक्त मुक्त निर्विषम स्मृतम। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण। मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष है। विषयों में आसक्त, मतलब बहुत ज्यादा लिप्त मन है, वो बंधन का कारण, विषय में आसक्त कर लिया। इसीलिए आगे हम कर्मण्यवाधिकार रास्ते की बात करेंगे। और कामना संकल्प से रहित मन मोक्ष मुक्ति का कारण कहा गया। विवेकानंद जी का जितना साहित्य, अधिकांश साहित्य उनका अनासक्ति कर्म योग पे ज्यादा लिखा हो। उनसे बोला मन की व्याख्या कीजिए, तो उन्होंने कहा मन एक ऐसा पागल बंदर है, इसने बहुत सारी शराब पी ली हो। बंदर चंचल होता है, पागल सेंसलेस है, और शराबी अनकंट्रोल्ड। या हम ये मान लें कि एक रथ माने शरीर को, और
इस रथ में बुद्धि जो है हमारी है वो सारथी है, और लगाम, इसको आप लोग क्या इंग्लिश में रेंस बोलते हैं ना, रींस बोलते हैं, रींस। और लगाम मन है, बुद्धि मन को पकड़ती है, लगाम को पकड़ती है। और घोड़े इंद्रियां हैं। अगर इंद्रियों के पीछे भागे आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मन को थामना। और हमारे यहाँ देखिए, जब हम बात करते हैं वेद की बात करें, उपनिषद की बात करें, महाभारत रामायण की, मैं तो बहुत सारे संतों को पढ़ के उनने जो ज्ञान दिया है, कभी मेरे को संत रैदास जी का दोहा हमेशा कोई, मैं हमेशा कोट करता हूँ। वो कहते थे, भृग पतंग मृग मीन कुंचर सब एक दोक विनाश, पंच दोक असाध्य माहिता की केतनाश। भंवरे को क्या दोष है? भृग पतंग, भृग मतलब भंवरा, वो फूल पर मोहित होता है, फूल में फंस के मरता है। पतंगे को बहुत आसक्ति होती है, लौ से पंखों को जला लेता है, जल के मर जाता है। हिरण को कस्तूरी सुगंध दोष है, वो सुगंध के पीछे भागता है और प्यासा मर जाता है। मछली को जिवा दोष है, छोड़ दाना डालिएगा, कांटे में दाना फंसाई, एकदम से फंस जाती है। कुंचर को काम दोष है, हाथी जब सेक्सुअली एक्साइट होता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बाकी हाथी उसको मार देते हैं। तो भृग पतंग मृग मीन कुंचर सब एक दोख विनाश, पंच दोख असाध्य माही ताकि केतनाश। मनुष्य में ये पांचों दोष हैं, तो वो कैसे, क्यों ना अपने मन से इन इंद्रियों को थामे। ये इंद्रियां तो आपको भटकाएंगी। तो बस ये है कि लगाम, बुद्धि रूपी लगाम आपके हाथ में रहे। जब कहते हैं, चलिए उस पर आगे ध्यान की बाद में चर्चा करेंगे, वो अलग एक कंसेप्ट है। तो मन को संभालना। और विवेकानंद जी का जितना साहित्य है, देखिए, एक तो उनका नाम ही अपने आप में अद्भुत है। उनका नाम तो विदिशानंद था, एक नरेन था। और महाराजा खेतड़ी अजीत सिंह जी ने उनका नाम दिया था ही उनको, विवेकानंद जी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें राइट और रॉन्ग की अच्छी पहचान है। समस्या हमारी क्या है? यही तो है, राइट और रॉन्ग का नहीं मालूम पड़ता। उस रास्ते पर चल जाते हैं और जीवन में यू टर्न कई बार नहीं आते, कई बार आते हैं। बच्चों के साथ खास तौर से कहते हैं ना, बस एक कदम ही रखा था राह, बस एक कदम ही रखा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। Of I case. First is interconnectedness. Body is not a single unit. Panch kosh hai, mind, body. These are three inseparable and influence each other. A healthy mind support the healthy body and vice versa. अगर healthy mind है तो वो बॉडी को सपोर्ट करेगा, और हेल्दी बॉडी वो माइंड को सपोर्ट करेगा। यूनिफाइड होल, यू कैन ट्रीट द वन पार्ट इन आइसोलेशन। एक सिंगल उसमें हम नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे कहते हैं, शरीर माध्यम खलु साधनम, या तत्र शरीरम नाम चेतना स्थान भूतम, पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। अ बॉडी इज अ सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि अलग नहीं है कुछ भी, इसे सीट ऑफ कॉन्शियसनेस फाउंड बाय एग्रीगेट ऑफ फाइव पंचभूतास। पांच भूत हैं जो हमारे पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये एग्रीगेट है इसका। एंड मेंटेनिंग इटसेल्फ इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन सब कोश में इक्विलिब्रियम चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो यू कांट थिंक अबाउट होलिस्टिक हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य की आप बात नहीं कर सकते। देन समत्वम योग उच्चते, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दिस इंक्लूड योर डाइट। समत्वम मीन्स बैलेंस्ड, हार्मोनी, समत्व भाव में रहे। क्या है, कष्ट अच्छा मिल जाए परिणाम तो भी समत्व है, खुशी में भी बहुत ज्यादा प्रफुल्लित नहीं हो रहे, और दुख हो गया तो एकदम से ब्रेक नहीं हो रहे। समत्व के भाव, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। मैं इस दुनिया में परमानेंट नहीं, इस दुनिया में कोई भी क्रिएचर परमानेंट नहीं। मैं बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला वो श्वान नहीं बनना चाहता कि मैं हूं तो सब कुछ हूँ, मेरे बिना भी जीवन चलेगा। इसीलिए वो साहित्य बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। चाहे वो अष्टांग योग हो या कबीर के दोहे हो, ये तो सिलेबस में होने चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, जीवत मरिए भवजल तरिए। जीते जी मरने को तैयार और तत्पर रहिए, तब भवसागर पार होगा, वरना अभिनिवेश रहेगा, फियर ऑफ डेथ। उन्होंने कहा है, तन को तनिक भरोसा नहीं काहे करत। आप लोग कहेंगे कहाँ है, कबीर पे ही लंबा हो गया। तन को तनिक, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का भरोसा नहीं है हमारी बॉडी का। किस बात का हम अहंकार कर रहे हैं, किस बात का प्राउड फील कर रहे हैं।
टेढ़े चले मरोड़े मूछे विषय मा भरमा नार। विषय वस्तु मीन सब्जेक्ट मैटर। मेरा फार्म हाउस, मेरा बंगला, मैं प्रोफेसर, मैं वाइस चांसलर, ये सब विषय वस्तु हैं। सिकंदर भी खाली हाथ गया था। मेरा मेरा करता डोले माया देख लुभाना रे। इस दुनिया में कुछ नहीं तेरा, सांचा करोड़ जाना रे। मीर फकीर औलिया जोगी रहा ना राजा राणा रे। पक तक तक मारे काल अचानक आना रे। कहत कबीर सुनो बे साधो, बिसरो नाम त्रिलोक को नहीं ठिकाना। तीनों लोकों में कोई ठिकाना नहीं रहेगा, इसलिए समत का भाव रखिए। जो जिस रूप में आ जाए अपना बेस्ट। और आगे हम बात करेंगे क्यों कहते हैं कि ईश्वर की पूजा मान के कार्य करें, ईश्वर को समर्पित करके काम करें। देन उसके बाद प्रिवेंशन एंड लाइट पे कोई बात नहीं। Am I audible? Yes, it's okay. Yes, sir, audible. प्रिवेंशन एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। हमारी अप्रोच जो आयुर्वेद कहता है प्रोएक्टिव है। बीमारी होने पे इलाज नहीं कराना, बीमार होना नहीं। प्रोएक्टिव अप्रोच हो। बरसात से पहले ही व्यवस्था होनी चाहिए छत की, बरसात के बाद में छत ढलाई शुरू नहीं करना। लाइफ स्टाइल इज अ की। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योग भवति दुखा। आपका आहार विहार युक्त हो, आपकी दिनचर्या युक्त हो, आपके सोने का जागने का समय युक्त हो, आपकी कार्य में की जाने वाली चेष्टा एक्स्ट्रा एफर्ट। डोंट ट्रीट योर बॉडी एज अ मैकेनिकल डिवाइस। डोंट ट्राई टू डू बेस्ट ऑल द टाइम। डोंट ट्राई टू बिकम द अचीवर ऑल द टाइम। दी बेस्ट कुछ नहीं है, ट्राई टू डू योर बेस्ट। Don't treat your body as a mechanical device because there is huge difference between a mechanical device and human body. ह्यूमन बॉडी में सिंस बर्थ अप टू डेथ हमारा बॉडी ऑर्गन्स लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिकल डिवाइस में पुश ऑफ बटन है, आप बंद कीजिए बंद हो जाएगी। तो मेन है प्रिवेंशन एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। आपकी लाइफ स्टाइल को मैनेज कीजिए। योर टाइम ऑफ स्लीपिंग, योर टाइम ऑफ वेकिंग, वेकअप कब कर रहे हैं आप क्या किस तरह से एफर्ट लगा रहे हैं, किस तरह का भोजन है। और भारत में तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात होती है, मैं कई बार गांव की लोकोक्तियां बहुत बोलता हूँ। तो क्यों ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है भारत में, क्योंकि बड़े विदुषी लोग शुरू से रहे यहाँ पर। या कबीलिया कल्चर का ज्ञान नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल फैक्चुअल पोजीशन की बात हो रही थी, उस पर तर्क तर्क होते थे। सबसे बड़ी बात है द्वैत अद्वैत अलग है, लेकिन हम मारने पीटने की बात नहीं होती थी। अलग अलग अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन उसमें वार्तालाप होती थी, शास्त्रार्थ उठाते। तो एक मुझे एक्चुअली मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर कोट किया करती थी, वो मुझे याद है, आज भी स्मृति में है मेरे। तो वो कहती थे ऋतु अनुसार खाना खाओ। आपकी ऋतु दिनचर्या तो प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी दिनचर्या क्या है, अकॉर्डिंग टू ये दिनचर्या आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे। देन ऋतुचर्या, आपके भोजन में भी ऋतुचर्या होनी चाहिए। किस ऋतु में, तो बड़ा अच्छा एक दोहे है, तो वो कहते हैं हर मौसम में खान पान का कैसे विशेष ध्यान रखा जाए। तो वो है लोकल भाषा में है ये हमारे यहाँ की। चैत मतलब नवरात्र जो होती है, जो हमारे नया साल शुरू होता है मार्च अप्रैल के मिड में। चैत्र, इसको चैत्र बैसाख, या आपके यहाँ गुड़ी पड़वा, हमारे यहाँ भी गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, तो नया साल शुरू होता है। तो चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंत अषाढ़ बेर, सावन साग भादो दही, क्वार करेला कार्तिक मही, अघन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, ई बारह जो दे बचाए, वही घर कभी वैध ना जाए। तो आप समझिए कितना साइंटिफिकली उस समय उन्होंने किया है भाई। चैत्र में इस समय गर्मी की प्रारंभ होता है, तो गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो उसको गुड़ अवॉइड किया जाता है। वैशाख में तेल घी, गर्मी है, आप कम सेवन कीजिए, वरना व्याधि होगी, आपको बीमारी होगी। जेठ भीषण गर्मी है, जेठ में पंत, उसमें कुछ लोकोक्तियों में बाजरा भी है, बाजरा भी अवॉइड करना होता। पंत मीन्स आपको यात्रा नहीं करनी, लंबी यात्रा अवॉइड कीजिए आप। तो जेठे पंत भीषण गर्मी होती है मई जून में। आषाढ़ बेल, बेल पत्र का जो फल होता है, इस समय भी वर्षा का प्रारंभ होता है, जो डाइजेशन वीक होता है उस समय, तो उसका भी तासीर ठंडी होती है। कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, अपच हो जाता है इससे बेल के कारण। देन सावन साग भादो दही, सावन में जो हरी सब्जियां हैं उसमें बहुत ज्यादा फंगस भी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करने को बोला गया। भादो में सावन साग भादो दही, दही को अवॉइड करने को बोला गया है। देन क्वार करेला, करेले की तासीर भी ठंडी होती है, बहुत ठंड की शुरुआत होती है, तो करेला अवॉइड करने को बोला जाता है। कार्तिक मई मठा ठंडा होता है,
और कार्तिक मतलब कौन सा महीना है? अक्टूबर नवंबर का समय है कार्तिक, यस। अगहन, अगहन में जीरा, जीरे का पित्त की समस्या होती है, जीरा पित्त में डिस्टरबेंस ला सकता है, ऐसा बोला गया है। और फिर पूस में धनिया की तासीर ठंडी होती है, उसको मना किया जाता है। देन माघ, बहुत ज्यादा ठंड होती है उस समय, जनवरी फरवरी में, तो उस समय भी मिश्री का सेवन, माघे मिश्री, माघ में मिश्री मना किया गया। फागुन में चना चैन, उस समय डाइजेशन वीक होता है, इस समय फेब मार्च में तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, वात दोष हो जाते हैं इससे। तो इनको, ये लोकोक्तियों में है हमारे यहाँ, अब कोई मॉडर्न साइंस में नहीं है। हम ये प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट की बात ही नहीं कर रहे। और लोकोक्तियां, किसी का शायद माइक्रोफोन, किसी का, Yes, yes, चलिए yes. म्यूट कर लीजिएगा, आपका किसी का माइक्रोफोन ऑन रह गया है। देन इसे और कहते थे, जैसे हरर बहेड़ा आंवला घी शक्कर संग खाए, हाथी दाबे कांक में सो कोस। तो बहुत सी लोकोक्तियां हैं, तो बोलेंगे तो इस पे काफी हो जाएंगी। देन तो लाइफ स्टाइल आपकी, हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स आपने सुना होगा, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर सुना होगा। बहुत कम काम कर रहे हैं, हाइपोकाइनेटिक है, ओवर काम कर रहे हैं, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। तो सम मात्रा में, बैलेंस्ड वे में अपना काम कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, कम भी मत कीजिए। आपने स्ट्रेस, बहुत सारी साइकोसोम, जैसे स्ट्रेस डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज नहीं होती, टाइप 2 होती है, लेकिन स्ट्रेस के कारण डायबिटीज हो जाती है। ये ये भी एक रीजन, हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर है, कि आप काम ही नहीं कर रहे हो कुछ, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर करती है एक्शन के लिए, तो ये भी एक रीजन है। देन सेल्फ अवेयरनेस, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, वो कैसे मिल सकता है? ध्यान, मेडिटेशन, धी यान। धी मतलब बुद्धि बोलते हैं संस्कृत में, यान को मतलब आप समझते हैं, यान। तो जब बुद्धि रूपी यान पर मन बैठा, तब तो ठीक है, और वाइस वर्षा गड़बड़ है। मन के पीछे पीछे अगर बुद्धि घूमेगी, तो आप में त्रुटि की संभावना ज्यादा हो जाएगी। और इसका, अगर बुद्धि मन को चलाएगा, चलाएगी,